Hello and welcome to Business Ajkal. My name is Swati Singh and you are watching me on today's updates. Yes, today we are going to talk about that the most important topic is crossing on all over the India, that is petrol and diesel prices are hiking. Yes, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट्स में पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस अप टू द मार्क बिल्कुल 100 क्रॉस कर चुकी है. Yes, on the result is 4.9% liter hike in its price since the beginning of the May. Yes, petrol has crossed the 100 mark in that states as a list of 4.9 liter hike in its price since the beginning of May. In Mumbai, petrol is retailing at 104.5 liter while diesel is retailing 94 per liter. After total hikes of 11.6 per liter and rupees 12.4 liter respectively since the beginning of the year. जी हाँ, जैसे कि पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस बढ़ रही हैं वैसे ही मार्केट में इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है. जी हाँ, जैसे कि आप सभी को पता है कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों की वजह से हमारे आम जनजीवन पे भी असर पड़ता है. लोगों को सब्जियां, फ्रूट्स, दूध और जो भी रिटेलर्स जो भी हम जाते हैं अपने मार्केट में शॉपिंग के लिए, उसके बाद वो सारी चीज़ें डबल प्राइसेस में मिल रही हैं, जिसकी वजह से एक आम आदमी से लेकर एक अच्छे खासे मिडिल क्लास फैमिली तक सब भी कोई इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं. लेकिन सरकार का अभी कहना है कि शायद ये इस पे अभी और महंगाई आ सकती है, उसके रेट्स अभी भी और बढ़ सकते हैं. हम लोग इसी मैटर पे थोड़ा और डिस्कस करने के लिए आगे चलते हैं. द प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल हैज़ राइजन sharpened in 2021 on the back of a recovery in the global demand as the world economy recovers the COVID-19 pandemic. The price of Brent crude has risen by 37.1% to about $71 per barrel. Yes, from about $51.8 per barrel at the beginning of the year. जैसा कि मैंने आपसे बता रही हूँ कि जितने भी ओपेक कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपना आउटपुट कम कर दिया है, जिसकी वजह से पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की जो भी हमारे इंडिया में डिमांड्स हैं वो बढ़ती जा रही हैं और सप्लाई जैसा कि उन्होंने कम किया है. लेकिन आपको जहाँ तक पता ही है कि इंडिया ऑल ओवर द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है कंज्यूमिंग में, तो इस वजह से इतनी सारी दिक्कतें आ रही हैं, जिसकी वजह से हमें डे टू डे पेट्रोल जब भी हम भरवाने जाते हैं तो हमें वहाँ पे पता चलता है कि कल की रेट ये थी तो आज अचानक से रेट ये हो चुकी है, जो कि कॉन्टिन्यूसली राइज हो रहा है. इसी पे आगे बात करते हैं. हाउएवर करंट पेट्रोल प्राइसेस आर सिग्निफिकेंटली हायर देन प्राइसेस इन FY14 व्हेन द एवरेज प्राइस ऑफ इंडिया इज क्रूड बास्केट वाज 105.5 per barrel. The price of petrol was decontrolled in 2010, while the price of diesel was decontrolled in 2014. In June 2013, when India's average crude basket was at $101 per barrel, petrol was retailing rupees 63.09 per liter, or about 76.6 per liter. When adjusted for the depreciation in the value of rupee against the US dollar. Similarly, in October 2018, when the average cost of India's crude oil basket, जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको बता रही हूँ, यूएस में 2013 और 14 में 101 पर डॉलर बैरल होता था और उसके बाद अचानक से वो बढ़कर 105, 1010 हो चुका है. वॉज एट $80.1 per barrel. The price of diesel peaked at rupees 75.7 per liter. जो अब हम बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेस पे, जो कि पेट्रोल और डीजल पे आता है. इंक्रीजिंग सेंट्रल एंड स्टेट टैक्सेस ऑन पेट्रोल एंड डीजल आर द की रीजन फॉर द प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल बिगिन एट रिकॉर्ड हाई. जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, even though the price of crude oil is only 3.5% higher than the beginning of 2020. Before the COVID-19 pandemic led to a sharp fall in the demand for crude oil. In Delhi, central and state taxes account for about 57% of
pump prices of petrol price of diesel. The central government had in 2020 hiked the excise duty on petrol by rupees 13 per liter and on diesel by about 16 per liter to shore up revenues, and as the pandemic led to a sharp fall in economic activity. While a number of states including Rajasthan, West Bengal, Assam, Meghalaya have reserved hike in state levies imposed during the pandemic, the central government has not cut central taxes despite calls from the RBI that the tax on auto fuels should be cut to curb inflation. Central levels account for 71.8% of total taxes on diesel and 60.1% of total taxes on diesel in the national capital. Government was not currently considering any cuts in taxes. तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं अपने कंक्लूजन के इस पूरे टॉपिक के ऊपर, तो यही है कि गवर्नमेंट ने अपने टैक्सेस को हाई किया है। जितने भी ओपेक कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपने पेट्रोल, अपने डीजल, अपनी जितने भी पेट्रोलियम चीज़ें हैं उनका जो भी वो आउटपुट है उसको उसने कम किया है, और जिसकी वजह से पेट्रोल, डीजल और केरोसिन और एलपीजी सारी चीज़ें महंगी हो गई हैं। यहाँ तक कि हमारे हाउस होल्ड की चीज़ें भी बहुत महंगी हो गई हैं। डे टू डे लाइफ सर्वाइव करना मुश्किल होता जा रहा है। इसमें मैं कुछ और भी एडिशन करना चाहूँगी, जैसे कि गवर्नमेंट ने कोविड-19 के ड्यूरेशन एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी थी, इवन दो स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ने बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से सारी चीज़ें इतनी महंगी हो गई और एक आम आदमी के ऊपर इतना प्रेशर आ गया, जिसकी वजह से सारी चीज़ें इतनी महंगी हैं। अगर आप अपने कॉर्पोरेट, अपने बिजनेस, अपने ऑफिस किसी भी चीज़ को शोकेस करना चाहते हैं ऑन बिजनेस आजकल, या फिर इंटरव्यूज़ हो गए, तो आप यहाँ पे दिए हुए नंबर और ईमेल आईडी पे कांटेक्ट करें हमारी टीम से, जो कि आपको हेल्प करेगी। जब तक के लिए टिल देन बाय।